Real life. Nina, we are live. Yeah. Hello, good evening, everyone. Welcome to Music Veranda. I'm Nina from Jaipur, and I'm a trained classical singer. And welcoming all the guests for this wonderful evening. Thank you so much for being here. Ooh, ah, ha, ha, ha. La 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 la. Ah, ah. माना के अंधेरों में गहरे हैं बहुत साए, माना के अंधेरों के गहरे हैं बहुत साए, पर गम है यहाँ किसको आती है तो रात आए, तुम रात के सीने में एक शम्मा जला देंगे, तुम साथ हो जब अपने, ला 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 ला, दुनिया को दिखा देंगे, ला ला ला, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे, तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे. Thank you. Over to you, Anila. Hey, Nina, thank you so much. This song is so amazing and you sung it so well. So thank you. That was Nina, my dear friend from Jaipur. Namaskar, welcoming all to Music Veranda. So I'm Anila Rampuria from Delhi, a mentor to entrepreneurs and initiatives and a sustainability crusader. So आज की शाम 3 सुंदर इत्तेफाक के नाम, एक तो 200 डेज ऑफ वेरांडा, दूसरा अमिताभ बच्चन सर का बर्थडे और तीसरा आज वेरांडा सजी है 5, आई थिंक मोर देन 5 ब्यूटीफुल सोलफुल एंड अमेजिंग डॉक्टर्स, डॉक्टर अनुराधा दास शर्मा, डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर रश्मि सिन्हा, डॉक्टर नम्रता, डॉक्टर मृणाल, एंड वी ऑल्सो हैव डॉक्टर अपर्णा. सो दैट्स यस, बहुत ही सुंदर और हसीन इत्तेफाक है. ये हसीन इत्तेफाक इसलिए भी है कि म्यूजिक वेरांडा डॉक्टर्स को पसंद आता है. And on our Facebook page, our profile picture says Music Heals. A bit about Veranda. Veranda एक सोच थी क्वारंटाइन की, वो मार्च की कुछ बात है. वो दिन सब कुछ भागता हुआ अचानक से रुक गया, सब तरफ हाहाकार और अंधेरा बन गया. पूरी मानव जाति ने हेल्थ के आगे घुटने टेक दिए. जिसको हम इतना अवॉइड कर रहे थे उसने अपना रंग दिखाया. इंसान को उसकी हेल्थ और बॉडी कितनी इंपॉर्टेंट है ये समझाया. दवाई तो हमारी जैसे एक आदत बन गई थी, बॉडी के सिग्नल्स को हमने इग्नोर करने की हमारी वो एक फितरत बन गई थी. वहां तक हमने बढ़ाया उसको, उस फितरत को, कि हम उसको इग्नोर करते जा रहे थे. एनीवेज, कमिंग टू वेरांडा, ऐसे में हाँ, सम ऑफ अस गॉट टुगेदर टू स्टार्ट समथिंग व्हिच वुड गिव सम रिस्पाइट एंड प्लेजर. And as music connects, music heals, and music is divine. We started with jamming sessions, कड़ी जुड़ती गई और कैसे कारवां बन गई. Today we complete 200 days with a global reach of I think 1 million through our FB page. About health, I would like to say something. To me, health is very, very important, and I would like to share today that at this platform for last 3.5 years, I have been medicine free because I have started taking and understanding the signals of body, and I think body is a very, very amazing machine that has been given to God by us, and we should be actually trying to understand the importance of this body. And to explain this, to make us understand this, we are happy that we have invited so many doctors who are going to tell us and take us ahead in this journey. So I would like Shivani to introduce all the doctors to us. Thank you, Shivani. Over to you. Hello everyone, very good evening. Am I audible, Anila ji? Yes, you are, Shivani. Okay, thank you. Yeah, well, hello everyone, very good evening to all. I'm Shivani here from Pune, from our old very lovely Music Veranda, and today we have an auspicious evening. As Anila ji said, we have 3 celebrations. Yes, 3 celebrations. First of all,
Many congratulations to our Music Veranda. इसकी तारीफ तो खैर चलती रहेगी, लेकिन और भी बहुत important celebration है आज. Music Veranda के 200 days हो गए हैं. We have birthday of Amitabh Bachchan sir, and also we have very soulful, very lovely, beautiful doctors. Yes, I will say very lovely doctors, beautiful doctors, and they are very professional, very great in their work. So we have five doctors with us. We have Dr. Anuradha Das Sharma, we have Dr. Rashmi Sinha, we have Dr. Shruti, we have Dr. Aparna, we have Dr. Mrinalini with us. So coming to We have Dr. Mahashweta as well. Oh yes, we have Dr. Mahashweta as well. Yes, yes. She heals in a different way. She heals with music, you know. So we have Dr. Mahashweta also. So we have Dr. Rashmi Sinha. She is MD Ayurveda, practicing holistic medicine and Veda Pulse. She is practicing in Gurgaon. She is practicing in Gurgaon she's practicing on calls, and yeah, during this pandemic times, she has taken her patients on call, and she's always ready to help her patients. We have Dr. Anuradha. Dr. Anuradha, she's a physician in charge of and an autoimmune specialist. She works with Sushruta Ayurveda Therapy Center in Nirman Bihar, Delhi. She is also a regular practitioner, and believe me, all these doctors are really working as COVID warriors in our country. We have Dr. Shruti Thwait. She's an Ayurvedic medical officer in Bilaspur, Chhattisgarh, and serving the government since last 14 years. Wow, that's really great. We have Dr. Mrinalini. She is also an Ayurvedic practitioner. She works in Vidisha. We have Dr. Aparna with us, and we have Dr. Mahashweta with us. So over to you, Anila ji, with taking our journey with the doctors ahead. Yeah, thank you so much for this introduction, and I would like to start with Dr. Anuradha. So Dr. Anuradha, she's a very dear friend of Veranda. In fact, she is the doctor for Veranda, who has been trying to heal so many of us through her smile, through her medicines, through her advice, and through her songs. So I would like to start with Dr. Anuradha. Hey Anuradha, how are you? Unmute, yeah. Hello. Yeah. Am I audible? Yes, you are. Yes. Yeah. First of all, thank you, Anila, for giving such a grand introduction. So I am here again, Dr. Anuradha, कुछ बोलने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए आप सभी से, जो मैं अब आज तक करते आई हूँ इस प्लेटफॉर्म में. So first of all, मैं ये कहना चाहूँगी कि Anila, do you remember the first talk we did was at the time of onset of this COVID. I think in the month of February हम लोगों ने फर्स्ट टॉक किया था. देन जब पीक में था ये कोरोना, तब हम लोगों ने सेकंड टॉक किया था, एंड नाउ वी आर डूइंग द थर्ड वन. एंड अभी जब जो स्टेडीली जो ड्रॉप हो रहा है इन्फेक्शन रेट, अभी हमारी ये थर्ड टाइम राउंड हो रहे हैं. So first of all, I want to congratulate Veranda and कि ये हर फेजेस में ये अवेयरनेस का टॉक इन्होंने कंडक्ट कराया. So it's a really an appreciating thing, I think so. So kudos to Music Veranda कि health के इस स्पेसिफिक में भी एंड आयुर्वेदा को इन्होंने इतना अवेयरनेस किया हर स्टेज में, एंड इट्स रियली हेल्पिंग. I have got the feedback from many friends of mine, many viewers. It's really helping. So thanks Music Veranda for this thing. And now I want to shift to my topic in which I am going to speak today. So can I ask you the first question? Yeah, definitely. Yeah. So question is, tell us about the role and share the effectivity of Ayurveda in treating and preventing corona. Yeah, actually today I am here with this motive only to create an awareness among people that what actually Ayurveda is doing at this moment. मतलब आयुर्वेद का क्या रोल है और इस पैंडेमिक, इस कोविड-19 में उसका क्या इफेक्टिविटी है. तो इसके बारे में थोड़ा बहुत तो मैं डेटा शेयर करना चाहूंगी आप लोगों से.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो एम्स का एक रिसेंट रिसर्च डेटा आया है, उसके बारे में बताना चाहूंगी कि एम्स में जितने भी पेशेंट्स दोज हु वेर अंडर दिस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, उसमें 100% सक्सेस रेट रहा है। आई मीन जितने भी पेशेंट्स थे कोविड पॉजिटिव, है ना, दे ऑल गेट रिलीव्ड, वो सारे नेगेटिव हो गए हैं एंड द सक्सेस रेट was 100%. So it's really a मतलब great thing. So in that इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद is really helping India to fight against this COVID, है ना। एंड रिसेंटली ICSR का एक वो भी आया है कि 80% जो इंडियंस हैं, है ना, they are asymptomatic. So why they are actually asymptomatic? Because उनकी immunity high है and the virus cannot is not able to manifest अपना जो वो है वो दिखा नहीं पा रहा है। तो 80% जो because of the immunity इनकी high है तो asymptomatic है। तो इन सब में कहीं ना कहीं this Ayurved and the herbs they are playing a great role. And second, the last thing I want to cite is recently 2-3 days back, Dr. Rashmi, Dr. Shruti must be knowing all these things because we share the same field. Ayush, Ministry of Ayush had launched an protocol citing the effectiveness of certain Ayurvedic drugs. So and myself as a physician, मैंने काफी patients को treat किया कोविड पॉजिटिव, नॉट इन दिल्ली, मतलब होल इंडिया में जो थे, somebody from Sonipat, somebody from Maharashtra, and I treated them with the very simple formulations of Ayurvedic medicines, and they're all negative till now. So this is the best part I want to share कि आप aware हो जाइए. I wanted to share because अभी जो है the curve is getting down, but दो season आने वाला है, विंटर सीजन है एंड फेस्टिव सीजन भी है, तो वी शुड बी लिटिल प्रिकॉशियस अभी से. वी शुड वर्क ऑन आवर इम्यूनिटी थिंग सो दैट वी कैन कोप अप. तो वी आर टुवर्ड्स द फिनिशिंग लाइन एक्चुअली. अभी बस बैटल जीतने के लिए कुछ महीने बाकी है. तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू take Ayurvedic drugs and build up your immunity. Okay. Hello. That's it. Anila? Yes. Thank you. Thank you, Anuradha. Very well said. And can you tell us something about the treatment and prevention of corona through Ayurveda and the preventive measures to be taken? या मैं इसी में आना चाह रही थी क्योंकि एक्चुअली द प्रैक्टिकल थिंग यही है, ट्रीटमेंट पार्ट जो है. तो उसमें पिछले बार भी आई हैव टोल्ड यू अबाउट द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज आवर इम्यूनिटी. और इम्यूनिटी में कुछ हर्ब्स ऐसे हैं हमारे आयुर्वेद में, दे आर वर्किंग वंडर्स, है ना. जैसे गिलोय आजकल तो बहुत घर घर में फेमस हो गया है ना, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया एंड आंवला and this ashwagandha. I want to cite about ashwagandha. Even in Japan, countries like Japan, no, they are doing research over this क्योंकि उनको भी प्रॉफिट मिल रहा है एंड मतलब हेल्थ बेनिफिशियल मिल रहा है अगेंस्ट कोविड बाय यूजिंग दिस अश्वगंधा. ओके, so ashwagandha, trikatu, and pipli, chitrak, so they are all common Ayurvedic drugs. You can use them, you can get them in any Ayurvedic store, and daily you can use them daily. And especially about the haldi thing, I want to say it is anti microbial, anti I mean allergic properties are there. So just include all these drugs in your day-to-day life and see the difference, है ना. So this is about the drugs I want to cite. And उसके अलावा जो है वो है कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, क्योंकि आजकल मैं जो देख रही हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली रेगुलरली, पीपल हैव बिकम सो कैजुअल. मास्क पहनना है तो यहाँ पहनना है, एंड मास्क ना हुई मस्करी हो गई, है ना. मेट्रोज में भी आई सीन लेडीज स्पीकिंग, यहाँ लटक रहा है मास्क. तो that is really dangerous actually. So let us continue with the same measures, preventive measures like this everybody knows, like social distancing, masking and sanitization and all.
वो बहुत जरूरी है. We shouldn't be stopping it, है ना. तो ये मैं कुछ लाइन बोलूंगी कि ये मास्क के ऊपर मेरे एक फ्रेंड है, he wrote some lines, just a few lines, okay. मास्क नहीं ये मस्करी है, कभी नाक के ऊपर तो कभी नाक के नीचे, कभी थोड़ी से सुशोभित तो कभी कानों में लटका हुआ. ये मास्क पहनना जरूरी नहीं, ये मास्क है, ये मस्करी नहीं. ओके. So that's what I wanted to say about the prevention and the role of Ayurvedic medicine. It will really benefit you because I have seen the practical aspect. Thank you. Over to you, Anila. या थैंक यू डॉक्टर अनुराधा. और मास्क का आपने जो बोला, मुझे लगता है भगवान ने सोचा होगा ये सब लोग मास्क तो पहले ही हुए हैं, तो एक्चुअली इन लोगों को मास्क पहना दो. सो दैट कैन बी एन इंस्टेंस, यू नो. So anyways, Anuradha, since you really connect well with music and you believe in the power of music and you sing so well, and this is Music Veranda, तो कुछ गाना एक आपसे हो जाए and then I would like to take the session. Over to you. Okay, so मेरे फेवरेट जो म्यूजिक डायरेक्टर है आरडी सर, मैं तो जब भी गाना गाऊं तो उनका ही मन करता है गाने के लिए. एंड दिस इज अ सॉन्ग फ्रॉम आंधी. तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं. तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं. तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं. तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो. तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो. रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं. तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं. Thank you. अनुराधा, बहुत अच्छा लगा. Very beautifully sung. So now I would like to move ahead and we would like to invite Dr. Rashmi to the forum. Hello, Dr. Rashmi. Yeah. So Dr. Rashmi, my question to you is, what is holistic medicine as per you, or holistic wellness? What is wellness to you, if I can say like that? Yeah, good evening, everyone. Good evening, everyone. Thank you so much, Anila, to inviting me here. I'm so happy to be here. And this, the music veranda, this music veranda has connected many souls. So this music veranda has connected many souls. Just give me a minute. Yeah, sure. I think there is some connection problem. Okay, yeah, with Dr. Rashmi. So, yeah, in the meantime, can we move ahead, and can I request Dr. Mrinal to kindly recite the, okay, are you there, Rashmi? Yeah. So Yeah. sorry. Yeah. Okay, no problems, no problem. Go ahead, Rashmi.
So thank you, Anila, for the warm welcome. I'm happy to be here. Thank you for inviting me, and you are doing a wonderful job, Anila. It's Thank you so really much. hats off to you. It's really appreciable. And the music veranda has touched the souls of many. And I have been connected to this music veranda through my dear friend Dr. Anuradha. एंड यहाँ पे मेरे बहुत सारे अजीज हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी Sure. जैसे वन इज शिवानी एंड शी इज माय डियर फ्रेंड एंड डॉक्टर श्रुति डॉक्टर मृणालिनी डॉक्टर माधवी एंड रजनी दी वंशिका and of course the little princess Apra. So Wow. yeah, so this is a family, next family to me. And you have asked me a question, what is holistic medicine? So holistic medicine, what is holistic medicine? It's a good question, Anila, and I would like to answer this. Holistic medicine is a form of healing that considers body, mind, soul, and five senses to attain a optimal health and wellness. So Ayurveda is the first holistic care, healthcare system in which जहाँ पे ये four dimensional state of health being body, mind, soul and five senses उसको describe किया. So Ayurveda is the first holistic healthcare system. So इसका जो principal goal है is to gain a proper balance in the life. So यहाँ पे मैं एक श्लोक बोलना चाहूँगी. स्वस्थस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आत्मविकार प्रशमनम च. तो इसका मीनिंग ये है कि टू promote the health of a healthy person, to promote the health of a healthy person and cure illness. So जो आपका स्वस्थ व्यक्ति है उसको आप कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, और अगर उसका जो रोग हुआ है, कोई आतुर हुआ है, तो उसका विकार हुआ है उसको, तो उसका प्रशमन यानी उसको इलनेस को कैसे क्योर करेंगे. दीज आर द टू प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ आयुर्वेदा. दे बिलीव दैट जो बॉडी, माइंड, सोल एंड फाइव सेंसेस है, ऑल आर इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. अगर एक का भी बैलेंस, अगर एक का भी कुछ वर्क ठीक नहीं होगा, जैसे मन है, अगर मन अगर आपका ठीक नहीं होगा तो उसका इफेक्ट पूरी बॉडी पे पड़ेगा, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं. और यहाँ पे हम एक बॉडी को ट्रीट नहीं करते हैं, पूरा एक जो इन सब के संयोग से जो बनता है इनको हम ट्रीट करते हैं. अगर कोई पेशेंट, जैसे मेरी एक पेशेंट है अभी रिसेंटली आई, शी इज़ 15 years old, तो उसको उसके बालों में ग्रेइंग होना स्टार्ट हो गया था. एट द एज ऑफ 15 यू कैन इमेजिन उसका ग्रेइंग होना स्टार्ट हो गया था. तो अगर वो आई मेरे पास तो मैं उसको मेडिसिन दे के भेज सकती थी, मगर नहीं. इन आयुर्वेदा वी ट्रीट द रूट कॉज, कि भाई ये जो उसकी ग्रेइंग हो रही है हेयर की, वो क्या रीज़न है उसका. सो उसका जैसे पित्त बढ़ा हुआ था और उसको खूब एसिडिटी होती थी, और उसका जो प्रकृति भी पित्त थी. तो हम जो उसका डाइट है उसको मैंने ठीक किया, उसका जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग उसको ठीक किया, और फिर इसके साथ साथ मेडिसिन भी दिया. तो अभी शी इज़ रिकवरिंग नाउ. सो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि मेडिसिन ही अकेला काम नहीं करता है, बट उसके लिए आपको आपका लाइफस्टाइल और डाइट है, इनमें भी आपको ठीक करना चाहिए. सो हेल्थ इज, उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ पे. सो फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ बोथ आर इम्पॉर्टेंट. सो वी हमको पर्सन को माइंड और बॉडी और सोल इन सब को ट्रीट करना चाहिए. सो आई वांट टू टेल यू दैट अल्टीमेटली जो पेशेंट है वो ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी हिज और हर बॉडी, हिज और हर हेल्थ और वेलबींग का. यहाँ पे आपका जो माइंड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज माइंड इज द कंट्रोलिंग कंपोनेंट ऑफ द बॉडी. तो अगर आपका माइंड अच्छा है तो आपका सब चीज़ अच्छा चलेगा, आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं. सो यहाँ पे एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. अनिला, तो डू यू गेट दैट? Yes, absolutely. बहुत
सुंदर। अगर आपका जो मन है, अगर आप मन से चाहते हैं कि आप काम करना, आप ठीक होना चाहते हैं, जैसे बौद्धिक स्तर पे तो सभी को पता है कि मुझे डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, मुझे ये डाइट लेना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब आपका जो मन है उसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे, जब आपका सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, तो आप ठीक नहीं हो सकते। तो इसलिए जब भी आपको अगर ठीक होना है तो पहले आपको अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मन को, माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी ही उसका इफेक्ट बॉडी पे पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। This is wonderful, बहुत wonderful insight, Dr. Rashmi, and we'll come back to you because there's so much to know more on this. But in the meantime, I will ask Shivani. She wants to dedicate a song for you. So over to you, Shivani. Yes, thank you, Dr. Rashmi. Thank you, Dr. Rashmi Bhabhi, for this wonderful information on holistic approach. आपने बिल्कुल सही कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और बहुत अच्छी लगी आपकी बातें ऑन होलिस्टिक अप्रोच। और इसी मतलब मन मेरा इतना खुश हो गया है सुन के कि मैं अब एक गाना गाना चाहती हूँ आपके लिए। सो कैन आई, एम आई ऑडिबल अनिला जी? Yes, yes, you are, Shivani. जस्ट अ मोमेंट। आप नहीं बोलते तब भी आप ऑडिबल हो। एक्चुअली ट्रैक स्टार्ट कर रही हूँ मैं गौरव जी, तो उसमें जस्ट एक 5 सेकेंड्स लग रहा है टाइम, Right. इसीलिए वो देख के कैसा लगेगा। यहाँ रखो, आ गया प्लीज, यहाँ बाद में। न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल, न जाने क्यों वो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल, न जाने क्यों वो अनजान पल सजे भी न मेरे नैनों में, टूटे वो हाय रे सपनों के महल, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, क्या बात है, न जाने। थैंक यू। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर मृणाल से। डॉक्टर मृणाल, ओवर टू यू। और शी हैज अ वेरी सोलफुल मंत्र or shlok of Ayurveda that she would like to recite. Thank you, Anila. Today I am going to initially recite a mantra for protection from all the disease. This is called as Dhanvantari mantra. And which camera of hello. Yeah. Hello. Is on your camera. Is on your camera. Yes. Yeah. Hello. Yeah. Yeah.
Go ahead. Yeah, sorry. So I would like to recite the mantra, and that is Dhanvantari Stotra or Dhanvantari Stavan. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Mahasudarshanaya Amrita Kalashahastaya Sarvabhay Vinashaya Sarvaroga Haraya Sarvaroga Nivaranaya Trailokyapataye Trailokyanidaye Shri Mahavishnu Swarupa Shri Dhanvantari Swarupa Aushadha Chakra Narayanaaya Swaha Om Shanti Shanti Shanti. We pray to the Lord who is known as Dhanvantari, Sudarshan Vasudev Dhanvantari. He holds the kalash of nectar of immortality. Lord Dhanvantari removes all the fear and diseases. He is well-wisher of the humanity. Dhanvantari is a form of Lord which is empowered to heal everyone. Today, we bow down to the Lord of Ayurveda. We bow down to Lord Dhanvantari and pray before him to heal the humanity on this harsh and cruel time of pandemic. Today, on the platform of Music Veranda, we spread the very positive energy by means of Ayurveda as well as by means of music, which touches the heart and connects the soul of everyone. I would really like to thank Anila and all the group of members and all the team of doctors, lovely doctors who are here to spread this positivity. And I feel and I hope that we will overcome this pandemic very soon. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you so much, Dr. Mrinal. And I'm sure your श्लोक has taken the whole energy to a different level. और बहुत जल्दी हम इस पैंडेमिक से मुझे ऐसा लग रहा है कि we'll recover from this pandemic. आप लोगों का जो जोश है, जो इतना I can see that determination on your faces, in your voices. So I'm sure you, all of us, or especially the doctors, are working very, very hard. So we're actually saluting all of you for your perseverance, patience, courage, and wisdom. Thank you so much. And now I would like to move to Dr. Shruti. So hi, Dr. Shruti. And Dr. Shruti, yeah. So yeah, unmute yourself. Yeah. Am I audible? Yes. Hello? You are. Yeah. Yes. Dr. Shruti. And Dr. Shruti, as आपका introduction में जैसा कि शिवानी ने बताया that you are connected with the government sector, you know. So Yeah. The government of the country is actually doing a lot in this pandemic time, and statistics have proved that we have been one of the wisest countries and nations to fight this pandemic. So can you just take us ahead into this journey and tell us what government is doing and what is government expecting from us? Okay. Sure, Anila, and thank you for inviting me. एंड ये बात सही है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में अभी सबसे ज्यादा जो है कोरोना की वजह से जो है सबसे ज्यादा जो दबाव है और जो भार है वो गवर्नमेंट सेक्टर पे ही पड़ा है। और क्योंकि हम लोग हैं तो जब से ये आया है आप मानेंगे मार्च से, तो जो आयुर्वेद के मैं आपको बताऊंगी, जो एलोपैथी का है वो तो आप लोगों को पता ही है कि क्या हो रहा है, बट आयुर्वेद में हम लोग जो आयुष डॉक्टर्स हैं वो हमारे गवर्नमेंट जो हमारे आयुष डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, इस पे मैं उस पे आज आप लोग को बताना चाहूंगी। इसमें मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि एक्चुअली में जो मेरी पोस्टिंग है वो रूरल एरिया में और विलेज एरिया में है। तो वहां पे क्या है कि लोग बाग जो है गांव के हैं, और आप लोग जानते हैं कि गांव के लोगों को जो है अवेयरनेस नहीं रहती है उतनी। शहर के लोगों के पास इतना सब साधन रहते हैं कि वो काफी कुछ अवेयर रहते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट गांव के लोग बिल्कुल अवेयर नहीं रहते हैं इस चीजों में। तो जब से ये आया है मार्च के महीने में, और उसके बाद से जो हमारी आयुष मिनिस्ट्री ने जो प्रोटोकॉल लिख दिया था, इसने पहले सबसे पहले बचाव के लिए दिया था कि कैसे आप बच सकते हैं। तो आयुर्वेद को उन्होंने खाली तब तक ही सीमित रखा था कि बचाव कैसे करना है अपनी इम्यूनिटी को, जिसके बारे में अनुराधा डॉक्टर
अनुराधा ने बताया कि कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो बस इसी चीजों के बारे में जो है एक प्रोटोकॉल जो है वो आयुष मिनिस्ट्री ने जारी किया था और उसी के तहत हम लोगों ने जो है काम किया उस समय। तो उस समय उन्होंने यही बताया कि क्या आपको करना है, जैसे कि गर्म पानी आपको पीना है, आपको हल्दी वाले दूध का सेवन करना है, आपको भाप लेना है, आपको अपने घर में जो मसाले हैं, हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, ये सब चीजों का ज्यादा सेवन करना है, आपको काढ़ा पीना है। तो काढ़ा के बारे में भी उन्होंने डिटेल में बताया था कि कैसे बनाना है और उसका कैसे सेवन करना है। तो ये सारी चीजों के लिए हम लोगों को भी बोला गया कि हम अपने एरिया में उस चीज के बारे में करें। तो हम लोग क्या करते थे कि जब हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आए तो हमने उनको अवेयर किया। हम लोगों ने क्या किया कि पैम्पलेट्स बनवाए इससे और बैनर्स छपवाए, इसके बैनर्स वगैरह बनवाए और उनको हमने बताया कि कैसे ये सारी चीजें करनी है उनको और कैसे उनको मेन जो इसमें आपको बचाव के लिए आपको जो कैसे मास्क का इसमें लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्या डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग है वो क्यों जरूरी है, सारी चीजें जो भी गवर्नमेंट से हम लोग को निर्देश मिलते थे उनको हमने गांव अपने ओपीडी लेवल पे तो किया ही। उसके बाद हमने कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी किए गांव लेवल पे। तो उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स में हम लोग जैसे चौपाल वगैरह होते हैं गांव में, वहां पे लगाया गया, वहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके लोगों को बताया कि हल्दी वाला दूध बनाना है तो कैसे बनाना है, काढ़ा है, अब गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि काढ़ा पीना है, बट कैसे पीना है, कैसे बनाना है, क्या क्या चीज मिलाना है, कितनी मात्रा में मिलाना है, जैसे है ना। तो वो सारी चीजें जो है हम लोगों ने उनको डिटेल में बताई और उनको समझाया कि भाई क्यों ऐसे करना है, क्यों मास्क लगाना जरूरी है, क्यों सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है, एक्चुअली में ये कोविड है क्या, कोरोना है क्या, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तो ये सारी चीजें हम लोग ने उसमें करी। तो ये तो हम अपने लेवल पे कर ही रहे थे। उसके बाद हम लोगों का ये आया कि हम लोग को जब ये सारे लेबर्स लौटे तो क्या हुआ कि गांव लेवल पे ही सारे जो हाई स्कूल्स और जो ये सारे थे उनको क्वारंटाइन सेंटर्स बनाया गया। तो हमने क्या किया कि वहां जाके अपने जो काढ़ा वगैरह है वहां पर भी हमने उनको जाके वितरण किया। जो हमारे गवर्नमेंट सप्लाई में हम लोगों के पास दवाइयां आती हैं, जैसे अश्वगंधा रिष्ट है, अमृता रिष्ट है, त्रिकटु चूर्ण है, ये सारी चीजें जो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर्स होती हैं, या कैप्सूल ये आयुष 64 करके एक आती है, ये सारे प्रोफाइलिक्सिस के लिए हमको बताया गया था, हमारे गवर्नमेंट सप्लाई में आती है। तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया अपने स्टाफ के जरिए, घर घर जाके इसको पहुंचवाया लोगों को, ये सारी चीजें की। उसके साथ हम लोगों ने क्या किया कि हमारे लेवल पे जो पुलिस स्टेशन है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड हो रहे हैं वो हो रहे हैं, कौन हो रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स हो रहे हैं, जो आपके पुलिस वाले, आपके जो पुलिस के स्टाफ्स हैं वो सारे हो रहे हैं, और जो स्वच्छता कर्मचारी हैं जो साफ सफाई करते हैं, ये सारे लोग हो रहे हैं। तो हमने क्या किया कि इनको जाके पुलिस स्टेशन में ये सारी मेडिसिन हम लोगों ने वितरित करी। तो ये सारी चीज हमने की। अब उसके बाद आया कि अभी क्या हुआ, जब छत्तीसगढ़ में अब ज्यादा बढ़ा तो अब यहाँ पे होम आइसोलेशन का आ गया। तो होम आइसोलेशन का जब आया तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट लोग मैक्सिमम लोग अब ये प्रेफर कर रहे हैं कि वो घर पे ही रह के इसका ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। तो उसमें क्या किया कि एक किट बनाई जाती है जिसमें कि एलोपैथिक मेडिसिन की तो है ही, तो उसमें हमारे आयुर्वेद की मेडिसिन को भी, जैसे त्रिकटु चूर्ण है, अश्वगंधा रिष्ट है, ये सारा हमने उस किट में प्रोवाइड कराया। तो वो डायरेक्टली लोगों के घर घर तक उनको पहुंचा, उससे उनको रिलीफ मिला। ये सारी चीजें करी हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग ड्यूटी तो हमारी लगी रही है, जैसे कि हमारे साथ के बहुत सारे डॉक्टर शुरू से, चाहे सर्विलियंस हो, चाहे स्क्रीनिंग हो, और उसके बाद ये होम आइसोलेशन तो है ही, और क्वारंटाइन सेंटर्स में भी किया। उसके बाद अभी हम लोगों की, क्योंकि अब इतने केसेस छत्तीसगढ़ में भी बढ़ रहे हैं कि अब अभी जहाँ कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं, इवन वहाँ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के वहां पर हम लोगों को पूरा हमारी ड्यूटी लग रही है, हमको डील करना पड़ रहा है। इवन क्रिटिकल केयर में भी जो चीज है, मतलब वहां पे भी क्योंकि स्टाफ की इतनी कमी हो रही है, सारे स्टाफ जो है संक्रमित होते जा रहे हैं, तो उसमें हम लोगों की भी लगाई जा रही है। और अभी जैसे आप लोग डॉक्टर अनुराधा भी बताई थी, 2-3 दिन पहले आयुष मिनिस्ट्री ने एक प्रोटोकॉल और जारी किया। उसमें जितने भी अभी इंडिया में अभी जितने भी अभी रिसर्चेस चल रहे हैं, तो उसमें देखा गया कि आयुर्वेद जो है वो सबसे ज्यादा 100% इसमें रिजल्ट दे रहे हैं। तो उस रिसर्च और उसके बेस पे जो आयुष मिनिस्ट्री ने एक प्रोटोकॉल जारी किया, जो माइल्ड से मॉडरेट पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए इन्होंने पूरा एक प्रोटोकॉल जारी किया। अगर आप लोग कभी देखेंगे तो आपको गूगल में वो चीज मिल जाएगी कि क्या कैसे करना चाहिए। पर मैं ये कहूंगी कि हम लोगों को आज ये तो करने मिला,
लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्रिटिकल केसेस में भी हमारे बहुत से डॉक्टर्स हैं, इंडिया के बहुत अच्छे फिजिशियंस हैं आयुर्वेद के, जिन्होंने क्रिटिकल केयर में भी पेशेंट्स को, जो कि बिल्कुल वेंटिलेटर पे थे, उसमें भी आयुर्वेदा को देख के उन्होंने जो है उसमें से लोगों को बाहर निकाला है। तो आयुर्वेद में बहुत ज्यादा वो है। और मैं ये कहूंगी कि भले ही कोविड जो एक पैंडेमिक के रूप में आया है, दुनिया के लिए बहुत खतरा बन के आया, बट आयुर्वेद के लिए बहुत एक तरीके से बून ही है ये, क्योंकि लोग बाग जो थी अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति लोग बाग भूल चुके थे। इसको सिर्फ लोगों ने रसोई घर, मसाले और बस इम्यूनिटी बूस्टर और यही सब तक सीमित रखा था। बट जब से कोरोना आया है तो लोगों ने देखा है कि लोग बाग एलोपैथी से ज्यादा जो है आयुर्वेद पे रिलाय कर रहे हैं, और उन लोग जो है ज्यादा से ज्यादा ये लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बीइंग अ डॉक्टर, हमारे पास जब से ये है ऑन कॉल हम लोग हर जगह, और अब तो इतनी केसेस बढ़ रहे हैं कि घर में भी कई लोगों को हो चुके हैं, तो हम लोग सब चीज के लिए मतलब फोन पे हम उनको डील कर रहे हैं। और होम आइसोलेशन में गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि जोन वाइज डॉक्टर्स के फोन नंबर दे दिए हैं, तो हम लोग को क्या है कि फोन पे भी पेशेंट्स को हम लोग डील कर रहे हैं, जो टेलीमेडिसिन बोलते हैं, जिसके जरिए हम उनको सारी चीज उनको बता रहे हैं कि क्या उनको करना है, क्या नहीं करना है, या क्या स्थिति है। तो ये सारी चीजें जो है ना गवर्नमेंट में शुरू से चल रही है, और अब मुझे उम्मीद है कि क्या बोलते हैं, ये जो प्रोटोकॉल आया माइल्ड मॉडरेट से, तो हमको इंडिपेंडेंटली भी मतलब पेशेंट्स डील करने मिलेगा। अभी तक तो हम एलोपैथी डिपार्टमेंट के साथ जो है उनके अंडर में ही जैसा बताया जा रहा था, जैसा हमको निर्देश दिया जा रहा था, हम कर रहे थे, और अपने स्तर पे कर ही रहे थे। अपने जो अपने घर वाले हैं या जो अपने फ्रेंड्स हैं, जो भी हमसे सलाह मांगते थे, तो हम अपने आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सारी चीजें गाइड कर ही रहे थे। बट अब हमको लगता है कि हमको पॉजिटिव पेशेंट्स भी मिलेंगे, और जिसको हम लोग जो है उनको हम लोग जो है वो कर सकेंगे, ट्रीट कर सकेंगे और ठीक कर सकेंगे, और दुनिया को बता सकेंगे कि आयुर्वेद में बहुत ज्यादा, क्योंकि आयुर्वेद ही सारी पैथीज की जो है क्या कहना चाहिए, मात्र इसी से सारी पैथीज निकली है। तो इसलिए अब आने वाला जो समय है वो आयुर्वेद का ही है। तो मैं तो बोलूंगी कि आप लोग आयुर्वेद अपनाइए और स्वस्थ जीवन पाइए, और बस यही मैं बोलना चाहूंगी। जय आयुर्वेदा। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रुति। और मुझे आपने जो बोला उसके बाद मुझे लग रहा है कि दवाई नहीं आई है, तो इसमें भी कोई भगवान की मंशा ही है कि बिकॉज हमने दवाइयों को इतना ज्यादा अपने रोजमर्रा में मतलब अडॉप्ट कर लिया था, तो अब भगवान ये चाहते हैं और कि वी शुड डेवलप दैट हीलिंग पावर, वी शुड स्टार्ट रिलाइंग ऑन दैट हीलिंग पावर। सो जी दैट इज, जी बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर श्रुति। एंड Anila ji, हाँ, we also have Dr. Namrata with us. yeah. I'll just go ahead. Just a minute, Shiv. Yeah, sure. डॉक्टर श्रुति का एक गाना सुन लेते हैं। Okay, अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मन मौसी हैं कोटा से, वो भी बहुत मेरे को बताती रहती है ये सब चीजें, तो मैं चाहूंगी उनसे भी हम कुछ पूछेंगे। सो ओवर टू डॉक्टर श्रुति। या आज जैसे अब लोग अमिताभ बच्चन जी का भी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन्हीं की मूवी है मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें से मैंने ये सॉन्ग लिया है, और ये लता जी का है। तो मैं आज आप लोगों के सामने ये सॉन्ग गाना चाहती हूँ, होप आप लोग को पसंद आएगा। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए, यादों में तेरी खोई रातों को मैं ना सोई, हालत ये मेरे मन की जाने न जाने कोई, बरसों है तरसी आंखें, जागी है प्यासी रातें, आई है आते आते होठों पे दिल की बातें, प्यार में तेरे दिल का मेरे कुछ भी हो अनजान, बेकरारी में है इकरार क्या कीजिए,
आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। थैंक यू। क्या बात है, बहुत सुंदर। मतलब थैंक यू। प्रॉपर गाते हैं अनुराधा। आप लोगों को देखिए याद हम है। लोग कॉलेज के सिंगर्स है। हाँ सब लोग हम लोग से डिमांड करते रहते थे ये गाना गाना, हॉस्टल में भी, रूम्स में भी, सारे सीनियर्स जूनियर, दीदी ये गाना गाइए, दीदी वो गाना गाइए। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच। सुमन मौसी है कोटा से, प्रणाम करती हूँ मौसी आपको। अनम्यूट करें। हाँ, तो सुमन बहुत बताती रहती हैं हम लोगों को कि घर की चीजें इस्तेमाल करो, तो मैंने सोचा इस फोरम में उनको भी मैं इनवाइट करती हूँ एक बार, और वो भी कुछ हमें बताएं। तो आप बताइए, जैसे आप मतलब रोज में किस तरह से आप किचन से जो चीजें इस्तेमाल करते सबको आप? नमस्ते। रोज में तो क्या है कि 50-55 साल बाद जब अपने को कुछ कुछ प्रॉब्लम होने लगी, तब अपने को लगा कि कुछ लेना चाहिए। तो कुछ बुक्स बहुत पढ़ती थी मैं, तो ऐसे ही बुक स्टॉल पे जाके किताबें, तो एक बार अजीत मेहता की किताब निरोग धाम भी मंगाती थी। तब मुझे लगा कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, मतलब ये होता है कि अपना सबसे बड़ा सुख होता है निरोगी काया। उसके लिए अपने को क्या क्या करना चाहिए, तो कुछ किताबें, अपना जो रूटीन है, जैसे सुबह उठूंगी तो गर्म पानी पीती, गर्मी हो गर्म पानी पीती हूँ, मेथी दाना खाऊंगी। अब अजवाइन, जैसे पहले एलोवेरा, आजकल तो एलोवेरा का बहुत है, पहले हम एलोवेरा की अजवाइन बहुत बनाते थे, तो उस एलोवेरा डाल के अजवाइन, तो अजवाइन खाएं आप, आपका पेट साफ रहेगा। अजवाइन के साथ आप हर्ड है, एक इसमें संस्कृत का श्लोक भी है कि एक अजवाइन 100 तरह के अन्नों को पचाती है, और एक हर्ड आपकी ऐसी देखभाल करती है जैसी माँ अपने बच्चे की करती है। हर्ड आप खाएंगे तो वो आपके पेट की और आपकी ऐसी देखभाल करती है जैसे एक माँ अपने बच्चों की करती है। अब इसके भी कुछ वो है, तो जैसे मैं इन चीजों को यूज करती हूँ, धनिया, सौंफ, मेथी दाना, अपना कभी जैसे उसके लिए इम्यूनिटी के लिए खोपरा है, बादाम है, इसको पीस के मिश्री के साथ, और मतलब इस तरह की चीजें मैं अपनी, आज मैं 75 ईयर की हूँ, और ऐसे मुझे कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। पार्क में जाती हूँ, सब तरह की जिम विम बहुत सारी चीजें करती रहती हूँ। तो पर बस ये है कि अपने किचन में बहुत सारी इस तरह की चीजें होती है कि आप अगर डेली उसको लेते रहो तो मतलब आपको बहुत फायदा रहेगा। बस मैं यही कहना है मेरा कि अपने शरीर का सबसे पहले ध्यान रखो, अपना एक एम होना चाहिए। Very nice. So that's what the wisdom speaks. So, thank you, Suman Mosi. Or now, yes, can I request Shivani to kindly Yes, introduce? yes, Anila ji. Yeah, so we also have Dr. Namrata with us. She is the owner at Ayurveda Bliss, Kanpur, and presently she's dealing in psoriasis, joint pain, diabetes, and GI problems. And she's an ex-medical officer for Rajasthan government and ex-clinic head in Madhavgarh. So over to you, Anila ji. I think we are going to call Dr. Namrata now. So good evening, Dr. Namrata. और डॉक्टर नम्रता भी गाना बहुत अच्छा गाती हैं। तो म्यूजिक वरांडा को मतलब डबल फायदा है, एक तो जानकारी मिल रही है और गाना भी सुनने को इतने मिल रहा है। सारे टैलेंट्स ना, डॉक्टर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं। तो डॉक्टर नम्रता, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, आई कैन सी यू,
या डॉक्टर नम्रता, एक तो मेरे को बताइए, अभी इतने डॉक्टर्स के लिए इतना टाइम था, तो आप लोगों ने इसको डील कैसे किया? व्हाट वाज द इमोशनल कंटेंट ऑफ द डॉक्टर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? और कुछ और आप इंफॉर्मेशन देना चाहें कोविड टाइम? Yes, go ahead. Hello, and hello everyone. Yeah, thank you so much. First of all, I'm sorry. Music that makes me feel very special when you people. Am I audible? Am I audible? Hello. You are audible, but there is problem in your connection. Thoda... Now you are audible. Go ahead. Am I audible? Yes, you are. Yeah. So first of all, I would thank you, Music Veranda team. I really feel very special when Neena ma'am calls me and she informs me about the thing that session is going to be held at evening and get ready. You have to present something over there. So thank you so much. And next, I should come to your question that what is the emotional status of doctors in this pandemic? So what I would like to say is, I want to present the emotional status of an Ayurvedic doctor, since because I am an Ayurvedic practitioner, so I can tell about the emotional status of an Ayurvedic doctor. Being an Ayurvedic doctor, how we are feeling. So first of all, I would like to in fact announce it very loudly that Ayurveda is not just a prophylactic thing for or COVID. First of all, I would like to bring into notice that viral diseases are self-limiting. They don't need any treatments. They just cure by themselves after a certain period of time. So whichever the pathy we go for, it hardly makes any difference. The thing is how your immunity is. So the body strength works here. So the matter is not this, that which pathy, is it Ayurveda or homeopathy or allopathy. The main thing is body immunity must be strong, and there's no doubt that Ayurveda is best in that. We all have at this point. So I really feel disheartened when Ayurveda practitioners are not given due credits by the government of India in killing Corona or COVID. Ayurveda is when we can also we can give the symptomatic treatments in Corona, like we can treat fever, and we can also treat the broncho constriction which happens here. We have drugs which cure this. We have drugs like Vasaka, which is a bronchodilator, an Ayurvedic drug which can be given. And we can cure fever. We have many medicines, many good medicines like Lakshmi Vilasas, and there are ample of, there is a broad series of medicines we have which can cure the symptoms. So Ayurveda is not only for immunity, it's a curative thing as well. It is curing COVID. And the emotional status is this. I just want the recognition of everyone, that everyone should recognize this thing and everyone should give a chance to Ayurveda to treat the COVID patients at the government levels, not only in India, but around the globe. So recognition is must at this time. This is what I feel. Rest doctors have told very well, and I would like to recite a small slok at this time. I'm reciting it. In our there definition was first a healthy, what they have, some dosha, some agnischa, some dhatu, malakriya. That means the doshas in the body should be in a balanced state, and the agni, that is the digestive power of the body, must be in a balanced state. Some dhatu, malakriya. There are 7 dhatus in the body. They should be in a balanced state, and then only all the metabolic activities of the body will go balanced. Prasanna Atmendriya Manah Swastyam Ityavidhyate. When the state of the mind remains happy, when the person remains happy, then only the immunity goes good. So what you need is, we have to remain happy at any cost.
like immunity is not a simple thing that by taking some drugs or by consuming some drugs you can build your immunity. It's a broad term. Immunity is related to your mind, it is related to your spirit, it is related to your atma, it is related to your thoughts. So everything must be taken into consideration for building up the immunity thing. This is all I just want to share, and if anyone of you want to need some get some more details, so connect with me personally. I'll explain it very well. Rest, I think it's this is my thought over the topic. Dr. Namrata, thank you so much. और बहुत अच्छा बताया. Happiness, immunity के साथ happiness भी बहुत important है, which we are trying to spread this message through Music Veranda. So Ayurveda is spreading the message of immunity, and Music Veranda is spreading the message of joy and happiness. So let us ये by chance हुआ है कि आयुर्वेद और Music Veranda एक tangent हुआ है और connect हुए हैं. So I think ये भी बहुत बड़ा एक divine inspiration है. Or I would like to back to Dr. Anuradha because she believes a lot in music and she thinks music heals. और बहुत सारे patients को भी बोलती है Music Veranda join कीजिए हो जाएंगे. So Dr. Anuradha, what has been your experience about music and health? Hello. Yeah. Yeah. अनिला, आपको पता ही है कि मैं हमेशा ही म्यूजिक को एज अ थेरेपी आई टेल टू माय पेशेंट्स, बिकॉज बेसिकली मेरे पास जो आते हैं IBS IBD के पेशेंट्स, आई हैव टोल्ड इन माय अर्लियर शोज आल्सो कि दे आर वेरी डिप्रेस्ड एंड उनकी स्टेट ऑफ माइंड बहुत एंड ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एंटी एंजाइटी ड्रग्स एंड ऑल. तो उनको मैं बहुत स्लोली आई जस्ट टेपर देयर एलोपैथी थिंग्स आई एंड स्विच टू द म्यूजिक थेरेपी एंड इट रियली वर्कड. In my previous show I have told about a patient. Yeah, I hope you remember. तो उसको धीरे धीरे जैसे आई टेल देम टू टेक दिस थेरेपी म्यूजिक थिंग. 1 hour आप वॉक करो, यू go with some meditation with very light music, and it really helps how dhire dhire you can just come out from the dependency of this allopathic medicine. Maybe insomnia, like neend nahi aa rahi hai, everything you can come up, and with little bit of Ayurvedic herbs like Brahmi and all, they help. And music therapy for me it's the best thing. And I will like to cite some few research in this field. Yeah, a few days back I read that in a they have done a research with the babies, small newborn babies, and they have introduced number of sounds like ghetto drums and everything, and along with that soothing music, and they tried to figure out the result. And you won't believe कि सारे babies जो music से जो expose हुए हैं, उनके हार्ट रेट पैटर्न्स वर सो गुड, एंड उनके alertness was so good, and उनका जो sleeping pattern was wonderful, their feeding pattern was wonderful. तो इट्स मतलब एक छोटे बच्चे पे जब म्यूजिक का इतना असर है, तो यू कैन मतलब वेरी वेल सी वो एक गिफ्ट है नेचर का सिंस आवर बर्थ. वो अलग बात है कि वी डोंट ऑफ, बट इट्स अ नेचुरल गिफ्ट टू हील योरसेल्फ. What I think, it's a very natural gift given by the universe to self heal करने के लिए. तो मैं हमेशा बोलूंगी. And the another thing I want to say कि being healthy, it doesn't mean that you don't have any illness and all. No, it's a feeling of well-being. तो it's a feeling of well-being जहाँ आता है, तो well-being के साथ म्यूजिक का बहुत बड़ा कनेक्शन है. Once you are into music, तो वो एक सस्टेन करता है फीलिंग ऑफ वेलबींग. आप खुद करके देखो. समटाइम्स यू गेट इरिटेटेड विद सम पीस ऑफ वर्क कि मुझे ये नहीं करना. यू धीरे से आप कोई भी म्यूजिक ऑन करो, आपको पता ही नहीं चलेगा व्हेन दैट वर्क इज फिनिश्ड. एंड इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग आई हैव सीन विद मेनी पीपल. सो दीज आर फ्यू थिंग्स आई वांट टू से. और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है ये आपकी जो बेटर यू बिकम बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर, है ना, एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट एट योर वर्क लेवल ऑल्सो. So these are मैं तो बोलती रहूंगी. So one more thing I want to add कि एक म्यूजिक का है, I've told before कि जैसे रिसर्च से पाया गया है कि जो गुड हार्मोन्स है
वो उसको बढ़ाता है, लाइक सेरोटोनिन एंड dopamine I have told in the previous shows. So it eases the pain also. This is also one thing which came out from the research. पहले जब आई नो हम लोग के मतलब पुराने इसमें आयुर्वेद में सुश्रुता जो थे, he was the first surgeon of the whole मतलब universe will go, the first surgeon थे. So that time also surgeries used to be done, है ना? And you won't believe mantras होते थे in a regular pattern, in a musical pattern, and there was no anesthesia at that time. एंड उनको पता भी नहीं चलता था कि वो मतलब वो पेन फील ही नहीं करती थी. तो दिस इज द पावर ऑफ म्यूजिक. तो सिंस लॉन्ग बैक दिस इज द पावर ऑफ म्यूजिक. तो मैं सबको बोलूंगी एज अ डॉक्टर, आप आइए एंड यू विल फील द चेंज. एनी सॉर्ट ऑफ म्यूजिक, मे बी सम मेडिटेशन सॉर्ट, मे बी एनी मेलोडियस थिंग, एनी सॉर्ट. And Music Veranda is doing this great job. It's just taking music to many healing like this, healing through this music. Doctor. So we have improve immunity takeaways. अभी तक improve immunity, remain happy and listen to good music. So अभी तक ये चीजें समझ में आई हैं आप. So now we have Nina. You know, she wants to dedicate a beautiful ghazal to all of you. Over to you, Nina. Thank you, Anila. I want to say a few words to all these beautiful, lovely ladies, doctors. Thank you so much for your hard work and support during this difficult time. Humility, kindness, and strength are greatly appreciated. Thank you for being all of us in the face of this adversity. Thank you, all the doctors. Thank you so much. And here I'm singing this Jagjit Singh's ghazal. सरकती जाए है रुख से नकाम, आहिस्ता आहिस्ता Let's wait for Nina's connection to come back. It's really sad. एकदम खो गए थे गजल में और अचानक से कनेक्शन ड्रॉप हो गया. So I think Nina, मधु जी आप कुछ जीजे, can you mute Nina जी? मुझे आप कुछ डॉक्टर्स के लिए कुछ म्यूजिक वरांडा की तरफ से कुछ एक डेडिकेशन सॉन्ग. Yeah, sure ma'am. Actually I'm waiting for a singing and listening all doctors. इंदौर में एक ग्रुप है डॉक्टर्स का, स्पंदन करके, स्पंदन ग्रुप है जो सारे उसमें डॉक्टर्स ही हैं, इंदौर के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं, और वो सभी साल में 1 या 2 प्रोग्राम्स करते हैं म्यूजिकल. सब डॉक्टर्स ही गाते हैं और यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा कि सारी डॉक्टर्स बिल्कुल टैलेंटेड है और अच्छा सिंगिंग करती हैं. तो मुझे झेल लेंगी ऐसा लग रहा है मुझे. एक अंतरा गा रहा हूँ फिल्म हिमालय की गोद से. ओ महबूबा, ओ महबूबा, ओ महबूबा, ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद. तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद. वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद. वो कौन सी
नहीं मौजू। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। किस बात पे नाराज हो, किस बात का है गम, किस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। किस बात पे नाराज हो, किस बात का है गम, किस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. GJ sir, Anila ji. Okay, next we have is Dr. Namrata who want to sing. Anila का connection कुछ शायद issue हो गया है, so she'll इंटरनेट के कनेक्शन से वो बहुत ज्यादा इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी ये लोग वापस आएंगे। जैसे अभी नीना जी का भी हो गया था, बट आई कैन सी नीना इज बैक। नीना जी यू देयर? Yeah, I'm there. Hey, welcome back. मैं जानता था आप वापस लौट के जरूर आ गए, और देखो आप वापस आ गए। So can we have that song again, please? आप बहुत अच्छा गा रहे थे, बट बीच में शायद कनेक्शन में कुछ इशू हो गया। Yes, I'll sing. If और Namrata उसके is बाद there, में नम्रता जी आप तैयार रहना। ओवर टू यू नीना जी। रुकती जाए रुक से नका आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए रुक से नका आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए रुक से नका आहिस्ता आहिस्ता जब होने लगे जब हो तो हमसे कर लिया पर्दा जब होने लगे जब हो तो हमसे कर लिया पर्दा हया यकलक है और शबाब आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए रुक से नका आहिस्ता आहिस्ता। थैंक यू। थैंक यू नीना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा भी कनेक्शन ड्रॉप हो गया था, बट देन when I came back I realized Nina is singing and I really enjoyed that. अनिला जी मेरी भी तारीफ कर दो, अच्छा गाया था मैंने।
अरे आप तो हमेशा ही अच्छा गाते हैं मधु जी। और मधु जी के लिए तालियां, बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू गो टू डॉक्टर रश्मि, एंड डॉक्टर रश्मि, we are about to close the session, तो कुछ any message that you would like to give? Unmute yourself. Yeah, Anila. Yeah. So आगे हम लोग क्या ध्यान रखें थोड़ा सा बस maybe 2 more words from you. तो यहाँ पे जैसे मैं बात की थी पहले कि लाइफस्टाइल और डाइट के बारे में, तो जो स्मॉल चेंजेस हैं लाइफस्टाइल के, वो आपके ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है आप ऑन वंस लाइफ स्पैन, और इट कैन ऐड एक्स्ट्रा ईयर्स टू योर लाइफ। तो ये कुछ छोटे छोटे आपके लाइफस्टाइल हैं जो आप चेंजेस कर सकते हैं। आयुर्वेदा में वैसे तो काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन है इन इसका, आपका जो रिजीम है, डेली रिजीम है, सीजनल रिजीम है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे को हमारी डाइट बताई गई है और उसके लाइफस्टाइल बताया गया है, ताकि आप अपने जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रेंथन कर सकें, और आपका जो वात पित्त का जो हमारे 3 बायोफोर्स हैं बॉडी के, इम्पॉर्टेंट बायोफोर्स हैं, उनको आप बैलेंस कर सकें। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो आप जो लाइफस्टाइल है उसको कैसे डेली जो छोटे छोटे चेंजेस हैं, यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी कि 5 मेन डेली रिजीम है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपके डेली लाइफ में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में स्ट्रेंथन करेंगे आपकी इम्यूनिटी को। फर्स्ट इज़ द वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो उससे उस टाइम एयर काफ़ी प्योर होती है और आप काफ़ी चीज़ें ग्रास्प कर सकते हैं। स्टडी का टाइम अच्छा होता है, मेडिटेशन योगा का टाइम अच्छा होता है। सेकंड, आप जो एम्प्टी योर बॉबल इन टाइम। थर्ड इज़ ऑयल पुलिंग। यहाँ पे जो ऑयल पुलिंग इज़ अ गंडूश इज़ अ टेक्निकल आयुर्वेदिक वर्ड। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो ऑयल है उसको आप 1 या 2 चम्मच अपने मुंह में रखें और उसके बाद 2-3 मिनट्स के बाद और इसके बाद स्पिट कर दें, तो ये आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन करता है। फिर एक नस्या, जो यहाँ पे अभी कोरोना टाइम पे जो काफ़ी इस चीज़ का प्रचार हुआ है नस्या के बारे में। नस्या इज़ नथिंग एल्स इज़ अ नेज़ल ड्रॉप, सो यू कैन पुट 2-3 ड्रॉप्स इन ईच नॉस्ट्रल। उससे क्या होता है कि जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो आपको प्रिवेंट करते हैं और इससे आपके बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होता है, और जो भी आपके ऊपर के पार्ट हैं, ऊर्ध्व जतुकत पार्ट है, उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। थर्ड इज़ अभ्यंग, बॉडी को डेली मसाज करना चाहिए, इससे आपके जो जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल रहते हैं, आपकी स्किन ब्राइट होती है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको डेली फॉलो करना चाहिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। यही मैं बोलना चाहूँगी अनिला। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है, और ये छोटी छोटी चीजें करके हम अपनी तबीयत को, अपने वेलनेस को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दैट्स वंडरफुल। इट हैज बीन अ ब्रिलियंट इवनिंग, अ वेरी अवेकनिंग evening rather, and very very thankful to all of you for giving us such beautiful insights, such important insights. और आज का टाइम इतना डिफिकल्ट है, ये सब चीजें हम लोगों को बहुत काम आएंगी। एंड टू रैप अप द शो, बिफोर दैट आई विल आस्क डॉक्टर नम्रता, जो खुद भी बहुत अच्छा गाती हैं, अगेन अ वेरी गुड कोइंसिडेंस, बहुत सुंदर इत्तेफाक। तो एक कुछ गाना चाहें तो ओवर टू यू डॉक्टर नम्रता। I will sing एहसान तेरा होगा मुझ पर। Thank you. Till it don't get disconnected. If it gets disconnected, then let it go. Okay. एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है ये
कितनी तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, पलकों की छाँव में तेरे साथ तेरा Dr. Namrata, I think yeah, is it audible? it is audible, लेकिन थोड़ा सा drag हो रहा है आवाज. There is disturbance. आवाज drag हो रही है डॉक्टर नम्रता. Anyways. Now is it audible? It's okay, Anila. Wrap up, no problem. There is some problem with Namrata. Yeah. So thank you so much for this I will brilliant. sing only one paragraph. Namrata, there is lot of disturbance. Yeah. So over to Gaurav Jain and Facebook पे बहुत सारे questions आ रहे हैं, लेकिन I because we are running short of time, so we'll have to wrap up the show. In fact, Dr. Aparna के भी कुछ questions थे, इन्होंने मुझे afternoon में text किया था that she would like to ask these questions, but it is very unfortunate कि हम लोग अभी नहीं उन questions को ले पा रहे हैं because we have a time constraint. So, but Dr. Aparna, thank you very much for being part of this show. At least आप hello बोल दीजिए doctors को. So, yeah. She has been waiting for a long time. इनकी 2-3 questions थे, but we don't have time to deal with those questions. Right. So thank you. Over to Gaurav Jain to wind up the show. थैंक यू सो मच सभी को. थैंक यू सो मच अनिला जी के इस ग्रेट इनिशिएटिव के आपने सभी डॉक्टर्स को जोड़ा, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सभी डॉक्टर्स का जो कि आज हमारे म्यूजिक वरांडा में आए, स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर अनुराधा, डॉक्टर अपर्णा, डॉक्टर मृणालिनी, डॉक्टर नम्रता, डॉक्टर रश्मि सिन्हा, डॉक्टर श्रुति और डॉक्टर महाश्वेता. और मेरे ख्याल से अनिला जी थोड़ी बहुत डॉक्टर तो अब आप भी बन गए हो, क्योंकि देखो हम सभी लोग एक एक म्यूजिक के द्वारा जो हम सबको हील कर पा रहे हैं. और मधु मुकेश जी, आप तो एक जबरदस्त डॉक्टर बन गए हो. आपने पीछे पूछा ना गाना कैसा लगा. अरे भाई, जब हम झूमते हैं ना, हम वो खो जाते हैं. चाहे आप गजल गा रहे हैं, आप गीत गा रहे हैं, संगीत गा रहे हैं, वो जो आवाज जो दिल तक पहुंच रही है, वो जो सुकून मिल रहा है, कई तरह के जो केमिकल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, राइट. और हमें नहीं पता कि अंदर से क्या हमारी एक चीज रिलीज हो रही है, लेकिन हमें जब अच्छा लगता है, दैट मीन्स इट इज वर्किंग, राइट. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, और मैं तो बोलूंगा कि एक बार आप इसका जो रिपीट टेलीकास्ट है वो जरूर देखें, क्योंकि ये सभी सारा खजाना है तो डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर अनुराधा, सभी डॉक्टर्स ने जो बोला है ना, दिस इज फ्रॉम द इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, टेस्ट एंड लाइव एग्जाम्पल्स, लाइव रिजल्ट्स. जो सक्सेस है हम इन लोग डॉक्टर ने देखा है, वही हम सबके साथ शेयर किया है. मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सभी डॉक्टर साथियों का, क्योंकि आप एक ट्रू वॉरियर्स हैं जो कि इस पेंडेमिक टाइम्स में एक सभी के साथ में बिना अपने उसको कुछ भी मूड को या घर को वो करते हुए भी, देखते हुए, सारा संभालते हुए, सारा अपने सभी मरीजों को, पूरे देश को संभाला है और अभी तक संभाल रहे हैं. So big salute to you, and I'm really happy and glad to say that today we have completed 200 days of Music Veranda, which is really an amazing thing. और मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बीच में सुनने को मिली कि डॉक्टर अनुराधा ने बोला कि भाई आप म्यूजिक वरांडा ज्वाइन कर लीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे. दिस इज द बेस्टेस्ट कॉम्प्लीमेंट वी एवर हैड इन म्यूजिक वरांडा. सो थैंक यू सो मच एंड कीप एंजॉइंग द म्यूजिक, चाहे वो कैसा भी म्यूजिक हो, मेडिटेटिव हो, हाई एनर्जी हो, लो एनर्जी हो, अकॉर्डिंग टू योर मूड, एंड कीप showering your love blessings for Music Veranda. Thank you so much. This is your host and host GJ Gaurav Jain signing off from Music Veranda. Bye bye. Take care.